So students, question number 39. If sec theta plus tan theta equals to P, then tan theta is 39. That is sec theta plus tan theta is equals to P. Then they wanted to know what is the value of tan theta. Students, first approach of this question, this type of question is कभी भी आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो. Why? Because अगर आपको सिर्फ एक tan थीटा चाहिए, तो अगर आप सोच भी रहे हो कि मैं p माइनस sec थीटा कर दूं, तो ऑप्शंस देखिए, इसमें सिर्फ p की टर्म्स है. ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा. हमें ये सोचना पड़ेगा कि वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस कि sec स्क्वायर, बिकॉज आई नो दैट कि इस टर्म में से sec प्लस थीटा और sec माइनस थीटा निकलेगा, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1. एंड एज आई नो sec थीटा प्लस tan थीटा तो p होता है, करेक्ट. तो sec थीटा माइनस tan थीटा p is equals to 1. So sec theta minus tan theta is equals to 1 upon p. That's fine. अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे what we know that from equation 1 and from equation 2 what we can do, we can subtract the equation. Subtract करने से क्या होगा कि sec theta got cancelled out and we are left only with tan theta. So what you have to do, you just have to do 1 and minus 2. If you subtract it, I'm directly subtracting it out. चलिए ठीक है, मैं अलग से कर देती हूँ. sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p. sec थीटा माइनस tan थीटा is equals to 1 upon p, right. Now you just have to subtract it. Subtract करने से ये काम हो जाएगा आपके पास, right. And then just cancel it out and you are left with 2 tan theta is equals to p minus 1 upon p, or tan theta or 2 tan theta is equals to, this is equals to p square minus 1 upon p. Why? Because यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. Then you take out the LCM, then p square minus 1 and you are left with tan theta is equals to p square minus 1 upon 2p. So correct option is p square minus 1 upon 2p. Okay. So students, question number 40. Question number 40 is a very conceptual and logical question, as because it only carries 1 marks and you have a very less time. So rather to solve it, go with the logical approach. वो कैसे? देखिए, the base of the BC of an equilateral triangle lies on the y-axis only. So पहले तो let's draw the y-axis. This is my y-axis. Okay. The base कहाँ lie कर रहा है? On the y-axis. This is plus y and this is minus y. Okay. The coordinates of C are 0, minus 3. C के coordinates is 0, minus 3. So let's do it one thing कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक middle line draw कर देते हैं such that this coordinate is 0, 0. So 0, minus 3 will be somewhere here, lie here. This will be 0, minus 3. Okay, 0 and minus 3 will be somewhere here because minus 1, minus 2 and minus 3. Okay, fine. This is your coordinate. What is this coordinate? Is C. If the origin is the midpoint of the base, if the origin is the midpoint of the base BC, ये BC है. If the origins means 0, 0, 0, 0 is the midpoint of the base BC, ये 0, 0, 0 इस base का midpoint है. What are the coordinates of A and B? BC ये midpoint है, तो देखिए जितना नीचे हाफ होगा उतना ही ऊपर हाफ होगा, तभी तो midpoint होगा. जैसे यहाँ पे 0, minus 3 है. So we must have, यहाँ पे हमारा 0, plus 3 होना चाहिए. जितना ऊपर उतना नीचे. So this is our coordinate B.
ओके, तो 0,3, अच्छा 2 ऑप्शन है 0,3 के भी। फाइन, बी तो निकल गया। अब ए देखिए ट्राइंगल कैसा दिया हुआ है, इक्विलेटरल। अगर आप सोच रहे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा वाला ट्राइंगल ऐसा करके ऐसा, ये ऐसा करके और ऐसा करके बना दूं मैं यहाँ पे, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं रहेगा, रादर देन इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। अगर आप सोच रहे कि मैं यहाँ पे ऐसा करके, जैसे यहाँ पे ऐसा करके कुछ बना दूं, दैट इज ए, और यहाँ पे तो ये भी साइड देखिए, ये साइड लॉन्ग हो जाएगी, देखिए ये साइड लॉन्ग हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी ओनली ऑफ वन कंडीशन, कि जब जितनी साइड यहाँ पे है उतनी ही साइड यहाँ पे होनी चाहिए। बट वी हैव अ डाउट ओवर हियर, क्योंकि हो सकता है ए आपका पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है और ए आपका पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। सो यू कुड हैव ए ओवर हियर एंड ए ओवर हियर। देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट इज प्लस एंड माइनस, दोनों हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओनली द ऑप्शन विच कंटेन्स 0,3 0, देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस है लेकिन यहाँ पे 3,0, सो ऑफकोर्स दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी हैव बी 0,3 और ए हमारा प्लस माइनस में होना चाहिए, तो देखिए यही ऑप्शन है जो प्लस माइनस में, सो ऑफकोर्स दिस ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे सही ऑप्शन है। ओके, वी विल सॉल्व इट ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके ऑब्जेक्टिव्स ना रहे एंड यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो लेट्स से इट इज x, 0, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी माइनस x, 0, है ना, x, 0 बिकॉज y इज 0 ओवर हियर। और मैंने बताया कि ये यही x एक्सिस पे ही क्यों लाई करेगा, बिकॉज द डिस्टेंसेस आर इक्वल, बिकॉज दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABC से आप किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। इन ट्राइंगल ABC हम डिस्टेंस फार्मूला की पहले तो ये साइड निकाल लेते हैं और ये डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से वी कैन सॉल्व इजीली। ओके, सो पहले तो साइड बताइए मुझे BC। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग फ्रॉम AB, BC एंड देन CA। मैं ये साइड फॉलो कर रही हूँ। ओके, सेन BC। अब मैंने B लिया है तो याद रखिए कि जो पहला यहाँ पे आता है दैट इज x1, y1, वही x1, y1 मानिएगा और C को x2, y2 मानिएगा। ओके, सो B के कोऑर्डिनेट्स है 0,3 और C के कोऑर्डिनेट्स है 0,-3। फाइन, सो अब हम लगाते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज BC² इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, राइट, x2 माइनस x1, तो ये तो गया 0, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, सो 3, 3, 6 एंड इट विल गिव मी 36। फाइन, ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया BC² 36। अब आप कहेंगे BC निकालो, सो BC निकाल लेते हैं। सो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 और इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ओके, डिस्टेंस है, नो मैटर फॉर माइनस साइन। सो ये हमारा आ गया 6। सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ऑल साइड शुड बी 6, तो ये AB भी 6 होना चाहिए। अब मैं डिस्टेंस ले रही हूँ AB, सिंस माई फर्स्ट A एंड सेकेंड इज माई B, so I will rather take it A as x1, y1 and B as my x2 and y2. Okay, so what is my A? A is my x, 0. Okay, and what is my B? B is my 0, +3. Okay, again AB square is equals to x2 minus x1, तो देखिए x2 minus x1, तो 0 minus x, x2 minus x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो देखिए यहाँ पे ये +3 है और ये यहाँ पे 0 है, y2 माइनस y1, सो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, सो यू विल गेट हियर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो डोंट वरी, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर, जो AB है वही BC और वही CA होगा, सो BC इक्वल्स टू 6, सो AB ऑल्सो इक्वल्स टू 6, है ना, ऑल आर 6 6 6, तो AB भी 6 होगा, BC भी 6 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल टू 6 6 36, -9, ये -9 को इधर लेके आ जाते हैं, सो 16 में 7,
Okay, so it is 27 is equals to x square. So what is the value of x? So can we take LCM? 3 9s are, 3 3s are, and 3 1s are. So LCM is 3 under root 3. And it is equals to what? It is equals to BC. It is equals to x square. X square. X square is equals to 1 minute. This is equals to, let's I rewrite the equation, that is more good. X square is equals to 27. So x is equals to, आप यहाँ पे हटाएंगे तो plus minus 3 under root 3. 3 under root 3. So correct option is 3 under root 3 and 0,3. So far till now we have solved 40 questions from section C. I'll solve it as soon as possible and I will upload the video. Thanks for watching.